नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, एक बार फिर से मैं शालिनी खरे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम हम और हमारी दुनिया में। तो बात महाकुंभ की चल रही थी, अभी भी बात महाकुंभ की चल रही है चारों तरफ। तो हर हर गंगे, हर घर गंगे। और जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि हम अपने कार्यक्रम को किस किस रास्तों से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो एक पॉइंट है वो है मार्गदर्शन, जिसमें आज एक बार फिर से नई दिल्ली से अमरदीप हमारे संग जुड़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमरदीप आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पले बढ़े नवयुवक हैं। उन्होंने कई साल कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करी, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम भी किया, मगर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। तो उन्होंने अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लिया। तो आज मार्गदर्शन में बेसिक या फंडामेंटल्स ऑफ अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला स्लैब है हृदय वाणी। हृदय वाणी में आज हम कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे। और फिर है वार्तालाप। वार्तालाप के बाद फिर हम मुखातिब होएंगे भक्ति की शक्ति से। जी हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग गीत के साथ। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं अमरदीप से, जिनके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है, अमरदीप, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म क्या है? आखिर ये है क्या? What is spirituality? Well, it's a concept that involves connecting to something greater than yourself. Okay, and that could be Atma or your soul and spirit, or Paramatma, universe, right? I think it's a journey of self discovery where you try to discover your own soul and its true goals and purpose, its passions and value. ओके, आप अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ते हैं, जहाँ पे आप अपनी आत्मा या जिंदगी का के असली मंजिलें और उद्देश्य, असली जुनून और जोश का खोज करते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट road trips and long drives. My friends know about it. So when I do it, for me, it's spirituality. Okay, somebody could enjoy music a lot. Okay, and for him or her, that's spirituality. If somebody enjoys meditation a lot, that's spirituality for that person, right? Somebody, you know, could have could be very compassionate towards poor, and they liked and they want to do service, community service or seva as their life's true purpose. So that's spirituality for them. Okay, I too like to do community service a lot. That's spirituality for me. Okay, the other thing I would like to say about spirituality is that uh, you focus on inner growth or inner transformation more in spirituality, okay, than external growth. For example, you know, one could be focusing on, mental peace, uh, happiness, okay, or calmness, right? And that's spirituality, rather than focusing on outer growth, okay. So you are more internally focused than externally focused in spirituality. And last but not least, I would like to quote one relevant mantra from Upanishad, okay, Tamsoma Jyotirgamaya, okay, which means मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो. Okay, so spirituality is a journey or means to bring light and peace
to mind and spirit. Okay, that's about it. अ, अब अगला सवाल, अमरदीप, अध्यात्म ही क्यों? मतलब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें अध्यात्म की तरफ देखना पड़ेगा। तो अध्यात्म में आखिर ऐसी कौन-कौन सी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से हमको समाधान मिल जाएगा? तो आप इसके बारे में बताइए। व्हाई अध्यात्म? व्हाई ओनली स्पिरिचुअलिज़्म? कुछ और भी हो सकता है? बताइए। Why should we adopt spirituality? Well, I would say that this is an interesting question and relevant question for our younger generation. Okay, and I would use my own experience in spirituality to address this question. Okay, so I have been in corporate world for 25 years, and right now I'm enjoying my sabbatical. So, okay, so let me answer this from my own experience. Okay, so there are two kinds of benefits from spirituality. Okay, one is self or micro benefits, and other is society or macro benefits. Okay, so when it comes to self benefits, from my own experience, spirituality definitely leads to a drastic reduction of stress and anxiety. Okay, and also improves depression for a lot of people. Okay, it definitely led to better peace and calmness for me, and improved my happiness levels also. Okay, so your happiness quotient definitely goes up. It also improves your energy levels and vibrations. Okay, from my experience. And it also improves qualities like resilience, courage, and patience, which helps you to deal with adverse situations or adversities in life in a better manner. It definitely helped me. Okay, in that case. Okay, and then we also have society or macro benefits. Okay, so obviously, happy individuals will spread their happiness and blessings around, right? So that's one. And then we have three C's of spirituality, okay, which is connection, compassion, and contribution to society. Because spirituality emphasizes on these three C's, that leads to, you know, more community service or seva or philanthropic activities. Okay, and lastly, I would say that spirituality has a huge potential to unite people and bring peace in this deeply divided world on grounds of religion, nations, and sects. Uh, so, yeah, so that's about it. Thank you. दूसरा प्रश्न मेरा इस प्रकार है, हु कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? Who should practice spirituality? That's a nice question. I think anybody of any age group or any background can practice spirituality. You don't have to be old and retired, and have no work to start practicing spirituality. You can start it pretty young. For example, students can do it. Should do it. They have a lot of anxiety and stress because of exams and career and all this kind of stuff. Young job seekers trying to find a good job can do it definitely. Okay, job professionals, corporate job professionals like me can do it. Okay, because they too have their, have their own rat race with the stress, anxiety, and depression and all coming around. They may or may not be happy in spite of all the material successes they have achieved. So they should still do it. And people of any background, they could be farmers, they could be workers, businessmen who run their own rat race with ups and downs in the business. With the economy going up and down, the corporate professionals or like me can do it definitely. Army, police, and people even in with criminal background and prisoners also can do it. By the way, my one of my beloved spiritual leaders, Sri Ravi Shankar, in fact, recently did a spiritual course in Tihar jail, where hardcore criminals and prisoners participated, and they were very happy. In fact, they said that we should have done it earlier, or else had we done it earlier, we wouldn't have landed up here, and we wouldn't have done whatever we did.
So definitely, they can also do it. Okay. So yeah, lastly, you don't have to be the monk who sold his Ferrari. Okay, to do it. Okay, I'm definitely not going to be the mall monk. Okay, and I love my Audi very much. I like traveling and going to beautiful places in nature like mountains and hill stations and sea beaches in my car, and that's a part of my spirituality because my soul, my spirit loves it, and I meet people while I do that. So definitely, I'm not going to the monk who sold the Audi. My friends they make fun of me on this. So yeah, you don't have to uh, leave your family, your world, your positions to do spirituality. You can very much be a part of. You can very much continue to do your carry out your family and corporate duties while adopting spirituality to make your soul very happy and do something for the society. Thanks. वेयर कैन वन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म अपने जीवन में ढालने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई ख़ास जगह है? अगर है तो उसके बारे में बताइए। व्हेन कैन वन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? कोई मुनासिब समय है क्या स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का? इसके बारे में हमें प्लीज़ बताइए। सो आपके लास्ट दो क्वेश्चन सवाल जो थे वो थे, हम अध्यात्म कब कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, राइट? व्हेन टू डू स्पिरिचुअलिटी एंड वेयर टू डू स्पिरिचुअलिटी. सो लेट मी एड्रेस देम टुगेदर बिकॉज दे आर शॉर्टर क्वेश्चन. सो इससे पहले कि मैं इन पे बात करूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूँगा जो लिंक्ड है इस क्वेश्चन से. ओके, तो देर आर फ्यू प्रैक्टिसेस in spirituality, and there are 5 M's, okay, which stands for things like meditation, obviously, mantra jap of your Isht devs like Shiva or Ram or Durga or Saraswati or Hanuman or whatever. There is music, which could be bhajan or satsang or music which soothes your soul. Okay, your favorite music, and then mindfulness. Okay, which is nothing but living in the present moment. Okay, so you live in the present moment, enjoy it fully instead of living in the past and getting a bit sad and regretting it, or live in the future and getting anxious or stressed about it. So you live in the present. Okay, and that's mindfulness. Okay, and then the 5th M is mudras. Okay, mudras are nothing but hand postures. हाथों के मुद्राएं होती हैं, and that's why they are called mudras. Okay, which helps to link your energy centers. Okay, or else they help to open your chakras or energy centers. Okay, and apart from these 5 M's, there are a few other practices, which is nature walk and pranayams, right? तो आप प्रकृति में आप जब वॉक करते हैं, दैट्स ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी. आप सी बीचेस में जा सकते हैं, पहाड़ों पे जा सकते हैं, नदियों के पास जा सकते हैं, जहाँ पे आपको और आपकी आत्मा को काफ़ी खुशी मिलती है, सुख मिलता है. तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है. और लास्ट है बट नॉट लीस्ट प्राणायाम. ओके, जो कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस होता है, योगा में ब्रीदिंग प्रैक्टिस होता है, विच एनर्जाइज योर बॉडी अलॉट. तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअलिटी के, 5 M's एंड नेचर वॉक एंड प्राणायाम्स. ओके, सो इनको आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं. ओके, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डू इट एनी टाइम, बट द बेस्ट टाइम एज पर माई ओन एक्सपीरियंस इज अर्ली इन द मॉर्निंग. Okay, when you are very fresh, okay, and you are focused and calmer when you get up from the bed, or else when you are at a sleeping time at a night. Okay, when you are about to sleep, your mind is again focused and calmer. You can do it. तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, सुबह है, प्रातः है, जब आप उठते हैं, या शाम को सोने से जस्ट पहले. लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पाया, फॉर वट एवर इज, इफ यू डोंट गेट टाइम, आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको थोड़ी सी प्राइवेट मोमेंट आपको मिलता है.
ठीक है, यू कैन डू वट एवर टाइम, ओके, इफ यू डोंट गेट अर्ली मॉर्निंग और नाइट, whenever you get a private boat, okay. When it comes to place, you can do it anywhere. आप कहीं भी कर सकते हैं, मेडिटेशन को छोड़ के, जिसके लिए थोड़ा सा प्राइवेसी की ज़रूरत है, लेकिन मेडिटेशन भी आप इफ़ यू आर ड्राइविंग इन द कार, इफ यू आर इन द बैक सीट, okay, or if you are in a train, and if you are sitting at a corner in a train, not so busy train, you can still do it, okay. Otherwise, बाकी practices जो हैं, other practices like mantra japs and music and mindfulness and mudras and nature walk and pranayams, आप कहीं भी कर सकते हैं, okay. So you can do it anywhere, okay. So yeah, so that's about it. Thank you. तो दोस्तों, ये था मार्गदर्शन अमरदीप के साथ। उम्मीद है कि आपको अपनी समस्या का कुछ न कुछ सॉल्यूशन, कुछ न कुछ सुझाव तो नज़र आया ही होगा। वैसे अध्यात्म का विषय है तो बहुत लंबा चौड़ा, और एक सवाल जो मन में उठता है कि अध्यात्म ही क्यों, अध्यात्म के द्वारा ही हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्यों ढूंढें। तो इस विषय पे आगे चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स पे करेंगे। अब जी हाँ, अब बारी है हृदय वाणी की। हृदय वाणी, क्योंकि हृदय से वाणी जो निकलती है वो सबको सुनाई पड़े या ना सुनाई पड़े, हमारे यूनिवर्स, हमारा जो एक मालिक है अदृश्य, जी हाँ, अनसीन फोर्स, सुपर पावर, या गंगा मैया, या जो भी हम कह लें, डिवाइन कनेक्शन हमारा, उनको हमारी हृदय की वाणी डायरेक्टली सुनाई पड़ती है। क्योंकि अगर सुनाई ना पड़ती तो शायद ये जो 3 चर्चित चेहरे हमारे थंबनेल पे आपको दिखाई पड़े, ये यूँ फेमस ना हो जाते। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रिटी मोनालिसा एंड अ जीनियस, वेरी जीनियस IITian बाबा एंड ब्यूटिफुल हर्षा जी। तो हमारी थंबनेल की गुत्थी मैं अभी सुलझाने जा रही हूँ। हाँ, एक बात मुझे याद आई जो थोड़ी मज़ेदार सी है, पर ये सत्य है। अगर हमारे अमरदीप जी, जो कि हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, वो यहाँ संगम के घाट पे प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद होते ना, तो वो भी IITian बाबा की तरह ही बहुत फेमस हो जाते हैं। बट अफसोस वो है नहीं हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं, मार्गदर्शन तो वो हमें देंगे ही। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनालिसा जी की। मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली एक बहुत ही सीधी सादी, खूबसूरत तो हैं ही, संस्कारी और शरीफ लड़की हैं। वे एक सपना लेकर के प्रयागराज आई थी। महाकुंभ में वो माला बेच रही थी, और देखिए, इसको हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं कि उनके जो दिल की आवाज़ है, जो उनकी हृदय वाणी थी, वो ये थी कि मैं एक दिन हीरोइन बन जाऊं फिल्मों में, बॉलीवुड में जाके मैं काम करूं। और इसको आप यूँ समझ लीजिए कि वो इतनी पॉजिटिव रही होंगी, और हमेशा ही उनके मन में ये ख्याल आता होगा, जो कि मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स हैं एक्चुअली, कि जो हमारी जो सुप्रीम पावर है, जी हाँ, परमेश्वर, परमात्मा, या यूँ गंगा मैया का आशीर्वाद ही कह लीजिए, वो सब इनको लग गया, और ये रातों रात ही अपनी खूबसूरत नीली नीली आँखों की वजह से इतनी प्रसिद्ध हो गई कि फिल्म डायरेक्टर ने खुद इनको अप्रोच करके साइन कर लिया। एंड आई थिंक वो फिल्म जो आने वाली है उसका नाम है मणिपुर डायरीज़। आप सब लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अपने जीनियस, फ़नी, विटी IITian बाबा के बारे में। देखिए, हमारे एक्स बिलावड प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, चिल्ड्रेन आर बॉर्न थ्रू यू बट दे डोंट बिलोंग टू यू। ये उन्होंने पेरेंट्स को कहा था। या फिर चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद जी की ही बात कर लें, उन्होंने बच्चों के लिए कहा था कि चिल्ड्रेन आर नॉट यूटेंसिल्स टू बी फिल्ड इन बट लैम्प्स टू बी लाइटेड। कुछ ऐसे ही विचार IITian बाबा के भी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल जो 1-2 सुसाइड केसेस हुए हैं, जो बच्चे जिन्होंने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, उसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली, तो इसी पे IITian बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे का अपना एक अलग पैशन होता है। ज़रूरत होती है टीचर्स को और गार्जियंस को
राइट बटन क्लिक करने की और उस पैशन को बाहर निकालने की, क्योंकि जितना अच्छा वो उस पैशन में आगे बढ़ के कर सकते हैं और किसी प्रोफेशन में वो शायद ना कर सके। और अभी फिर वो बड़े चर्चा में थे। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, तो उस पे भी आईटीएन बाबा की काफ़ी धाकड़ प्रतिक्रिया रही थी। तो आईटीएन बाबा विश्वास करते हैं कि संतोष या मन की शांति ही सब कुछ है। और आईटीएन बाबा का क्या महाकुंभ का मैसेज हमें मिलता है, वो हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाए, इंसान कितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ना जुड़ा हो, वो अंत में शांति की तलाश करता है और ये शांति उसे सिर्फ अध्यात्म से ही मिल सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फेस, वेरी फेमस एंड ब्यूटीफुल फेस ऑफ हर्षिता जी, मॉडल टर्न साध्वी। उनके आते ही महाकुंभ में हंगामा मच गया कि सबसे खूबसूरत साध्वी आ गई, सबसे खूबसूरत साध्वी आ गई। मॉडलिंग से कंसर्न रखने वाली हर्षा जी ने प्रसिद्धि देखी, पैसा देखा, नाम देखा, पर उन्होंने शांति नहीं देखी। तो उनका ये संदेश है कि हाँ, मन की शांति चाहिए तो अध्यात्म की तरफ मुड़ो। और आईटीएन बाबा बिलोंग टू जूना अखाड़ा एंड हर्षा जी बिलोंग्स टू निरंजन अखाड़ा। अब इन तीनों चेहरों को ही मैं क्यों लेकर के आई थंबनेल पर, वो इसलिए लाई क्योंकि लोगों में एक आम धारणा सी बन गई थी, जो मैंने डिस्कशन सुने अपने चारों तरफ, कि प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है और उसका प्रसाद ये है कि सिर्फ इन्हीं तीन चेहरों पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और देश विदेश में लोग इनके बारे में मतलब रील्स बना रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। तो क्या यही है अध्यात्म की दुनिया? बट नो, इन तीनों के द्वारा हमको बहुत ही अच्छा मैसेज मिल गया। जी हाँ, अब देखिए ना, मैनिफेस्टेशन का मैसेज मिला हमें मोनालिसा जी की तरफ से, आईटीएन बाबा की तरफ से हमको मिला कि पढ़ाई लिखाई से भी ऊपर अध्यात्म है, और हर्षा जी की तरफ से हमको जो संदेश मिला वो ये कि खूबसूरती और सांसारिकता से बढ़कर अध्यात्म है। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा दृष्टिकोण या नज़रिया तो आपका ज़रूर बदला होगा। और अब बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं अपने पंडित जी की तरफ। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। हम फिर से एक बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं और हमारे चैनल का नाम, जैसे सब दर्शकों को पता है, आपको पता है, हम और हमारी दुनिया। तो अब ये हमारा दूसरे नंबर का एपिसोड है और पहले एपिसोड में भी आपने काफ़ी जानकारी दी थी महाकुंभ के बारे में, मानसिक स्नान के बारे में आपने बताया था। जी जी। तो एक इच्छा उठी कि आपसे हम ये प्रश्न पूछें कि आखिर ये समुद्र मंथन जिसकी वजह से ये महाकुंभ मनाया जाता है, तो इस समुद्र मंथन में आखिर क्या क्या निकला था? समुद्र मंथन में 14 रत्न बना था। हमारा नाम है अखिलेश पांडे, कालिया चौराहा, हरियाणा टोला से। जी और समुद्र से 14 रत्न निकला था। जी जी उसमें से 14 रत्न में से है कालकूट विष, जी जो शिव जी धारण किए थे। जी कामधेनु गाय, जो जी। स्वर्ग में है। जी उच्चेश्वरवा घोड़ा, वो भी स्वर्ग में है। जी एरावत हाथी, जो इंद्र का सवारी है, इंद्र लेकर चलते हैं। और कौस्तुकम मणि, एक मणि होता है कौस्तुकम मणि, जो कि लोहा में छुआ दो सोना हो जाता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो भी स्वर्ग में है। रंभा, रंभा मतलब सुंदरी औरत, जो कि स्वर्ग में है। देवी लक्ष्मी, जो कि विष्णु की पत्नी हैं, विष्णु भगवान की पत्नी है। बारुणी, चंद्रमा, परिजात पुष्प, पांच जन्म संख, धन्वंतरी, अमृत, मदिरा, सारंग धनु से 14 रत्न समुद्र मंथन से निकला था। जो महाकुंभ लगता है, यहाँ पर भी एक बूंद अमृत गिरा था, तभी से महाकुंभ का इसका आयोजन होने लगा है। जी। तो अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न ज़माने में हम देखें तो ये जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से हमको क्या क्या अवेलेबल है? पंच शंख मिल सकता है और बाकी सब स्वर्ग में है। और मदिरा मदिरा मिल सकता है पृथ्वी पर। और जगह दूसरा, जगह, और अमृत तो मिल ही गया हमें। हाँ, अमृत ही है।
अपना प्रयाग में नहाइए, यही अमृत स्नान है। जी जी। तो पंच शंख जो है उसकी क्या अहमियत है पंडित जी? पंच शंख घर में रखने से क्लेश, कष्ट, दुख, दारिद्र्य ये सब दूर हो जाता है। घर में सुख, शांति, धन की बढ़ोतरी, घर में एकता, मन को शांति ये सब प्राप्ति होता है। पंच शंख जैसे कि नाम से लग रहा है 5 शंख रख लें घर में उठा के? नहीं, 5 शंख नहीं, एक शंख, उसका नाम ही है पंच शंख। ये कहाँ पे मिलेगा? ये वो हर जगह मिल जाएगा, हरिद्वार में, काशी में, प्रयागराज में भी मिल सकता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, और ये बताएं कि अब जैसे जो आपने बताया था पिछली बार मानसिक स्नान के बारे में, हाँ है ना? जी। तो मानसिक स्नान के बारे में बताया था, तो अब जैसे भी यहाँ पे संगम में भी अपने गंगा जी में भी अमृत की बूंद गिरी, जी। तो जो लोग मानसिक स्नान करें तो वो लोग किस भाव से अभिभूत होकर करें? मन से, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन से कहीं भी हैं 3 बार आचमनी कर लेंगे, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, वही बहुत बड़ा अमृत स्नान है, उसी को अमृत स्नान कहते हैं। अमृत स्नान कहते हैं। और गंगा मैया को गंगा मैया, वो और गंगा। गाना है ना वो एक बॉलीवुड का, मानो तो मैं गंगा माँ माँ हूँ, हूँ नहीं तो बहता पानी। बहता पानी, तो हमें माँ मान करके ही इनको लिखा स्नान है करना गंगा है। तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायणम प्रियंग मदापहारम वाराणसी पूर्वपतिम भज विश्वनाथम। केवल आप गंगे गंगे 3 बार कह दे देंगे तो गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जी। अच्छा पंडित जी, ये जो श्लोक आपने बोला इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गंगा तरंग। गंगा मतलब तरंग। जब स्नान करने से मन का गंगा तरंग, एक तरंग होता है, मन की शांति, सुख, ये सब मन को अनुभव होता है, जी इसको जी कहते हैं तरंग। जी जी। अच्छा अच्छा। और मतलब शिव जी के जटाओं से निकली हैं ये? शिव की जटा से निकली है तो शिव जी कहाँ बैठे हुए हैं? कैलाश में। अच्छा अच्छा। और वहाँ से ये मतलब बहती हुई नीचे की तरफ आई हैं। गौधाम है, ये हरिद्वार में पड़ता है। गौमुख से निकलते हैं ये गंगा जल। शिव जी से गौ गौ एक गौमुखी है, वहाँ से गंगा जी की प्राप्ति होता है, हर जगह निकलता है। अच्छा अच्छा। देखिए पंडित जी, जैसे प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है, तो ये बड़ा ही शुभ समय माना जा रहा है। 144 साल के बाद जो है महाकुंभ है। तो गंगा जी जब महाकुंभ ख़त्म हो जाएगा 26 फरवरी को, महाशिवरात्रि के साथ ही, तो गंगा मैया के जल में क्या फिर वो बात नहीं रहेगी जो भी नहीं, महाकुंभ में? रहेगा। चाहे जब स्नान करेंगे, गंगा जो फल महाकुंभ में मिलता है वो हमेशा वही फल मिलता है गंगा स्नान करने से। जी जी। तो आप कोई संदेश और देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो दूर दराज बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, वो भी कार्यक्रम देख रहे हैं? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। अपने मन से वहीं पर 3 बार गंगे गंगे बोल दें, उनको पूर्ण फल मिलेगा। महाकुंभ का गंगा स्नान करने का पूर्ण फल मिलेगा। जी। अच्छा पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर दोबारा मिलते हैं आपसे नमस्कार। नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार भैया। और अब भक्ति की शक्ति। पिछली बार हमने आपको कैलाश खेर जी का भजन दिखाया था, शिवो हम। इस बार भी हम एक गीत लेके आए हैं। इसको हम भजन तो नहीं कह सकते हैं, पर ये है एक मोटिवेशनल सॉन्ग। और हाँ, सरप्राइज ऑफ सरप्राइज, इसमें नन अदर देन हमारे प्रिय IITian बाबा यानी अभय सिंह जी फीचर हो रहे हैं। आई थिंक ही हैज़ बीन रोप्ड इन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जो भी है, गाना बहुत वायरल हो गया है, बहुत फेमस हो गया है, एंड इट्स हाईली मोटिवेटिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ आगे आइए और गाना सुनिए, गाना देखिए, और आप हमको अपने भजन, आध्यात्मिक भजन भेजना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ कम अहेड एंड एंजॉय द सॉन्ग। और हमें अपने लाइक्स देना ना भूलिएगा, और कमेंट भी दें तो बहुत अच्छा है। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे अपने ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ। कार्यक्रम का नाम ना भूलिएगा, हम और हमारी दुनिया, और मैं शालिनी खरे। तब तक के लिए टेक केयर। हर हर गंगे, घर घर गंगे। तेरे सपनों में उड़ान थी, IIT बाबा की पहचान थी। आसमान को छूने का जुनून तेरी मेहनत में जान थी। AI की जमीन पे तू था एक चमकता सितारा।
आईटी बाबा की तरह चमकेगा जहाँ भी जाएगा तेरा मेला। कनाडा की गलियों में तू था बादशाह जैसा, पर आईटी बाबा ने देखा असली जीत वो थी जो दिल में था। लाखों कमाए पर अंदर का खालीपन बड़ा, पर आईटी बाबा ने सोचा अब अपनी राह खुद बना। दुनिया से लड़ते हुए आईटी बाबा ने अपना रुख बदल दिया। अपने इरादों को साबित करते हुए दुनिया से खुद को जुदा किया। आईटी बाबा तू एक मिसाल, तेरे इरादों की तरह खुद को साबित किया दिखाया। दुनिया को तेरी राह, दुनिया तेरी तरफ देखे पूछे क्या है तू। कर आईटी बाबा तू खुद से सच्चा, अपनी दुनिया का किंग है तू। हवाओं से लड़के अपनी राह बनाई, आईटी बाबा ने दुनिया को दिखाया वो रास्ता जो कभी नहीं दिखाया। फिर वो खड़ी आई जब कोविड ने सब बदल दिया। आईटी बाबा ने अपने कदम नई दुनिया की ओर मोड़ दिया। सवालों से लड़ते हुए तू खोया नहीं, आईटी बाबा के अंदर वो रोशनी थी जो सही रास्ता दिखाए। महाकुंभ के मेले में आई आईटी बाबा की चमक, जहाँ से दुनिया को मिला प्यार का असली रंग। अपनी दुनिया को तोड़कर आईटी बाबा ने खुद की बनाई वो जगह जहाँ सच था, जहाँ हर किसी को खुद से प्यार मिलाई। आईटी बाबा तू एक मिसाल, तेरे इरादों की तरह खुद को साबित किया दिखाया। दुनिया को तेरी राह, दुनिया तेरी तरफ देखे पूछे क्या है तू। पर आईटी बाबा तू खुद से सच्चा, अपने दुनिया का किंग है तू। हाँ से लड़के अपनी राह बनाई, आईटी बाबा ने दुनिया को दिखाया वो रास्ता जो कभी नहीं दिखाया। जब दुनिया ने कहा तू गलत है, आईटी बाबा ने कहा मैं सही।